First of all, good morning all the students. Now, today we will learn the first chapter of the class 12 physics, electric charge and electric field. So, first of all we will discuss about what is electric charge. Okay, so here you can see that a little story about that. Now you can know that up to 10th and 11 you already learned that there are number of small particles are available. Okay, quarks, electron, proton, neutron, Higgs, bosons. Okay, there are number of material, progestron. Okay, number of small particles are there. From then you get basic concept about electron, proton and neutron. Okay, so actually what happened till now we will know only Newton's gravitational force between two particles. So actually what happened, one scientist should be take two equal amount of the charge having electron, means two electrons are put just 1 centimeter apart from each other, and due to applying gravitational force G m1 m2 upon r square, and he can count that value, so it be 5.5 10 to minus 67. But when they are counting as the practically what is the force between them, and they can see that the actual force between them is 2.3 10 to minus 24, means just see that value you can see in the screen. That value should be 5.5 10 to minus 67, and here the value is 2.3 10 to minus 24. There is the biggest difference in the power of 10 to minus 67 and 10 to minus 24. So there is here 10 to 24 minus 67. It means you can get about around 43. So here is the 10 to 43 times power more than gravitational force. So here we can observe that here there is not only gravitational force, but here is another force is also exist. And you already know that gravitational force is always and always attractive force, but here two electrons are repulsed to each other. Okay, so here one more force is also behind the gravitational force, means another force is also acting between these two charges, and this force is just due to their intrinsic property. Intrinsic property means internal property, आंतरिक गुण कहते हैं ना शुद्ध हिंदी में. So it means here actually that fundamental intrinsic charge, a particle having that intrinsic charge, intrinsic property, and due to that property the additional force is applied. That property means the property of that particle, the intrinsic property of that particle, that is called charge. So what you write in exam, okay, so here are some notes, you just learn them. Now we will just in this video we'll learn about electric charge and some basic property of the electrostatic. So what is electric charge? Now what you write in exam, the property of the material by which it exert or experience the electric and magnetic effect is called electric charge. It means property of the material means any material which experience electric and magnetic effect, then that material is called as electric charge, or a material having electric charge. Okay, जिसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सपीरियंस होता हो या मैग्नेटिक फील्ड का एक्सपीरियंस, तो हम कह सकते हैं भाई इलेक्ट्रिक चार्ज है इसके पास, या तो ये मटेरियल इलेक्ट्रिक चार्ज है. नाउ व्हाट इज एग्जांपल, एक्सपीरियंस ऑफ द सीइंग अ स्पार्क और अ हियरिंग अ क्रैकल व्हेन वी टेक ऑफ आवर सिंथेटिक क्लोथ्स. कभी कभी आपने देखा होगा, कहानी भी सुनेगी, वो सिल्क का क्लोथ घिसते हैं तो कुछ स्पार्किंग जैसा अंधेरे में दिखता है, या एक्चुअली यदि आईने के सामने अंधेरे रूम में खड़े रहो, आपके बाल सूखे हो, ठंडी का मौसम हो, जाड़े का मौसम हो, कभी कभी आप कंघी लगाओ तो थोड़ी का स्पार्किंग दिखता है. सो यू कैन हैविंग दिस काइंड ऑफ एक्सपीरियंस, और यू मे हियर दिस काइंड ऑफ एक्सपीरियंस. Another example is that
लाइटिंग इन द स्काई ड्यूरिंग द थंडर स्टॉर्म ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। हमने देखा हो कि बिजली होती है तो एक्चुअली कहां से होता है? हाउ दे आर लाइटिंग? ड्यू टू इलेक्ट्रिक थंडर स्टॉर्म, okay, because they have some electric charges, they have electrons. Now we will learn further about what is electrostatic. Okay, electrostatic means actually that is the branch of the physics which deals with the study of the charge at rest. Means state charges are not moving. Into the bracket I write that state charges means a branch in which you will learn or study about the charges which are state, not moving. They are static charge. The force means the charges, the force between charges, field on the charges, potential due to the charges. To these charges called as the means that is the study of electricity, or also may call the electricity. You may understand what I say. Now, what is the important fact about these charges? Some basic important about it. First, you know that, or we also know that there are only two types of electric charge, positive and negative. Proton is positive and electron is negative. Friendly, we can say that. Okay. Now, like charges repel to each other and unlike charges are attract other when they are come to contact. It means if two same charge means both proton or both electron are coming towards each other, then what happen? They are repelled. What happen? Not they are repelled to each other. And similarly, unlike charges, one is electron and another one is proton, then what happen? They are attract to each other. Third point, the unlike charges nullify each other effect when they come to contact. Means there is one charge that is proton and another charge is electron. When they are come to contact means that is +1 and that is -1. So what is the total? +1 in -1 is equal to 0. So they nullify their effect, but when both have the same value but having different sign, means unlike charges having same value, and when they are contact to each other. Therefore, the charges are named as a positive and negative by the American scientist Benjamin Franklin. Normally, fourth point, normally the material are electrically neutral. Why neutral? Because that material have a same amount of the electron and the same amount of the proton. So due to that they balance to each other. For example, मान लो मेरे पास एक मटेरियल है जिसमें 5 प्रोटॉन है जो पॉजिटिव है और दूसरे 5 इलेक्ट्रॉन है जो नेगेटिव है, तो उन दोनों का +5 और -5 का एडिशन क्या हो जाएगा? 0. सो इट मे that is electrically neutral. Fifth point, the electron of the outermost orbit of an electron are far from the nucleus, so that the electrons are loosely bounded with the nucleus and can be separated easily from the orbit by giving some energy. These electron are taken called as a free electron. It means क्या बोल रहा है कि कोई एक इलेक्ट्रॉन है, ओके, मेरी नोट्स है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के आसपास, ये जो न्यूक्लियस है बराबर, उसके आसपास ऑर्बिट में वो गोल गोल घूम रहा है. तो एक्चुअली वो न्यूक्लियस के साथ लो लेवल की एनर्जी या तो लूज बाउंड से वो बंधा हुआ है. ओके, क्योंकि न्यूक्लियस के पास तो बहुत सारी एनर्जी होती है. न्यूक्लियर एनर्जी आप फ्यूचर में पढ़ोगे तो उसके पास जो एनर्जी उसकी कंपेयर में ये अट्रैक्टिव एनर्जी तो बहुत कम है. You can also learn here we can get it 2.2 10 to -24 means -24 Newton. So there is very less energy. So when you are giving some gaining energy, अगर आप उसको थोड़ी सी भी ऊर्जा दोगे तो वो जो गोल गोल बाहर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है वो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? वो फ्री हो जाएगा. वो अपनी ऑर्बिट में से हमेशा के लिए फ्री हो जाएगा. चलो तो अब आगे देखते हैं. 6 point, the body of the atom can be charged positive by losing some of its electrons. Similarly, a body or atom can be charged negatively by gaining the electron. It means क्या होता है कि आपके पास कोई एक बॉडी है. फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ कि एक बॉडी है जिसके अंदर 10 प्रोटॉन है और 10 न्यूट्रॉन है. बराबर, 10 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है. तो मीन्स टोटल क्या हो गया?
0। तो मीन्स लूजिंग सम इलेक्ट्रॉन्स, मतलब वो कुछ इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे इसके अंदर से 3 प्रोटॉन लूज हो गए, 3 प्रोटॉन लूज हो गए। पॉजिटिवली मैं 3 प्रोटॉन निकाल लेता हूं, तो अब मेरे प्रोटॉन अंदर कितने हैं? 7, बराबर है। और इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 10। तो 7 माइनस 10, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है इसलिए माइनस, तो 7 माइनस 10 यानी क्या होता है? -3। सो इट मीन्स वो क्या हो गया? नेगेटिव मटेरियल बन गया। सिमिलरली अगर उसी मटेरियल के अंदर यदि मैं नेगेटिव चार्ज ऐड करता हूं, फॉर एग्जाम्पल 10 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन थे, अगर मैं 4 इलेक्ट्रॉन और अंदर ऐड कर देता हूं, तो अब मेरे इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? -14। और प्रोटॉन कितना है? +10। तो +10 - 14 दैट इज -4। सो इट इज ऑल्सो नेगेटिवली चार्ज। मीन्स यदि उसके अंदर से प्रोटॉन को आप निकाल देते हो या इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो, तो वो चार्ज क्या, वो मटेरियल क्या बन जाता है? नेगेटिवली। तो उसका उल्टा भी हो सकता है कि आप इलेक्ट्रॉन निकाल देते हो या प्रोटॉन ऐड करते हो, तो मटेरियल कैसा बन जाता है? पॉजिटिवली चार्ज। नाउ 7 इज द apparatus used to detect the charge on a body of the gold leaf electron। आप देख पा रहे हो कि एक ऐसा मटेरियल मैंने बनाया है, एक फिगर है जिसमें आप देख सकते हो कि ऊपर एक मेटल फॉल। एक्चुअली ये जो मटेरियल है वो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप कहा जाता है, जिससे हम चार्ज जो होता है, मटेरियल चार्ज है कि नहीं है वो चेक करने के लिए होता है। तो एक्चुअली क्या होता है कि ऊपर एक मेटल फॉइल है, बीच में कॉक है और सबसे नीचे कॉपर वायर और उसके नीचे होगा गोल्ड लीफ। गोल्ड मतलब सोने के लीफ होते हैं, वैसे उसकी जगह पे आप तांबे से करो या तो एल्यूमिनियम फॉइल रखो तो हो सकता है, पतला सा एल्यूमिनियम फॉइल रखो तो उससे भी हो जाएगा। तो एक्चुअली क्या होता है कि जब आप ऊपर कोई एक मेटल फॉइल के उसके बगल वाले में देखो कि नीचे जो लीफ होते हैं ना, गोल्ड लीफ, उसमें 2 लीफ होते हैं। कितने लीफ होते हैं? 2 लीफ होते हैं। ऐसे 2 लीफ होते हैं जो एक दूसरे से चिपके हुए हैं, बराबर है। अब जब आप ऊपर दोगे मटेरियल, तो जो नीचे के लीफ है ना वो ऐसे अलग हो जाते हैं। तो ऐसा अगर होता है तो समझ जाने का कि वो चार्ज है। अगर ऐसा नहीं होता है, वो नहीं खुलता है, तो वो चार्ज नहीं है। अब ऐसा क्यों होता है? एक्चुअली क्या होता है कि ऊपर का यदि मान लो आपका मटेरियल चार्ज है, तो चार्ज होगा तो ये जो 2 लीफ है, ये पहला लीफ और दूसरा लीफ, दोनों में वो चार्ज जाएगा। या तो दोनों में पॉजिटिव चार्ज जाएगा या तो दोनों में नेगेटिव चार्ज जाएगा। अगर दोनों में चार्ज जाएगा तो मीन्स दोनों में सेम चार्ज होने के कारण, या तो दोनों में पॉजिटिव होगा या तो दोनों में नेगेटिव होगा। तो सेम चार्ज होने के कारण वो क्या करेंगे? एक दूसरे से रिपल करेंगे। तो रिपल करने से वो दोनों लीफ एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। अगर दोनों लीफ एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, इसका मतलब उसमें चार्ज है, वो मटेरियल में चार्ज है। 8वां, ये बेसिक पॉइंट है जो आपको सेकंड चैप्टर में ठीक से पढ़ाया जाएगा, समझाया जाएगा। अभी इसके बारे में बस एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और थोड़ा नोट डाउन याद रखना है। कैन इलेक्ट्रिक चार्ज कैन क्रिएट्स इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इट मीन्स, देखो यहाँ पे पहले पे लिखा है V = 0। मीन्स अगर वोल्टेज 0 है तो ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। ओके, V = कांस्टेंट होगा। अगर मतलब फिक्स अमाउंट ऑफ कोई वोल्टेज है दोनों के बीच में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। बट V कांस्टेंट नहीं है, 0 तो नहीं है, साथ साथ उसका वैल्यू भी चेंज हो रहा है। तो इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड भी मिलेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी मिलेगा और साथ साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी होगा। ये हम बाद के चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, 4th और 5th चैप्टर में। नाउ लास्ट टॉपिक, लास्ट पॉइंट, 9th पॉइंट, द इलेक्ट्रिक चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन अ यूनिफॉर्म सरफेस। मतलब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सर्कल देखो, तो सर्कल कैसा है? यूनिफॉर्म सर्कल। सेंटर से हर जगह पे डिस्टेंस कैसा है? इक्वल है। और सब जगह पे उसका कर्वेचर भी इक्वल है, कर्वेचर चेंज नहीं है। इट मीन्स यदि कर्वेचर सेम है, बराबर है, तो चार्ज क्या होगा? इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। बट कर्वेचर इज नॉट इक्वल। मीन्स कोई जगह पे ढलान ज्यादा है, कोई जगह पे शार्प कर्वेचर है। देखो यहाँ पे मैंने दिखा है दूसरे फिगर में कि यदि शार्प कर्वेचर है, हाँ, जहां पे कर्वेचर कैसा है? शार्प है, तो वहां पे चार्ज भी ज्यादा होगा। और जहां पे शार्प नहीं है तो वहां पे चार्ज कम होगा। क्योंकि उसके ऐसा क्यों होता है? तो उसका एक छोटा सा हिंट मैंने लिखा है कि सिग्मा प्रोपोर्शनल टू 1/r। एक्चुअली ये सिग्मा दैट इज द चार्ज डेंसिटी, वो भी आपको नेक्स्ट आएगा, अभी नहीं आएगा। अभी सिर्फ नोट डाउन करना है सब चीजें। ओके, नाउ द सेकंड टॉपिक इज दैट पॉइंट चार्जेस। ओके, now up to now you can learn what is electric charge, what is electrostatic, what is the property of the electrostatic. Now we will learn about the point charges. Okay, so what is point charge? It is a point
where all the charges of the body are concentrated. Means a point where whole charge, for example nucleus is also called as a point charge because all the protons are centered at that point. मीन एक ऐसा पॉइंट जिसके ऊपर सारा चार्ज आ चुका है, टोटल चार्ज आर कॉन्सेंट्रेटेड है, so that is called point charge. Now here we can learn there is a material into the world are mainly three kinds of conductor, insulator and semiconductor. So that is the basic topic. What is the conductor? The material through which the electric charge or current can flow. Okay, that is called a conductor. For example, metal, human body, earth. Okay, many things are wastewater. Okay, not a pure water. Okay, that is also behave as a conductor because electrons are moving from one place to another place in the conductor. Now insulator. The insulator means the material in which the flow of electric charge or electric current are resist. Means इसमें इलेक्ट्रिक करंट और चार्ज मूव नहीं कर रहे, इलेक्ट्रॉन करंट फ्लो नहीं होता है और चार्ज मूव नहीं करता है. इट मीन्स that kind of material. Insulator, for example, wood, plastic, okay, polythene, etc. Okay. Now semiconductor. The material of which resists the electric flow or electric charge and current, but the value of the resistance between the conductor and the insulator are called as a semiconductor. It means semiconductor में क्या होता है कि उसमें करंट फ्लो होता है बट अप टू सम वैल्यू, उससे ज्यादा वो फ्लो नहीं हो सकता. मतलब उसकी जो कंडक्टिविटी है वो कंडक्टर से कम है और उसकी जो इंसुलेटर की कंपेयर में उसका रेजिस्टेंस भी कम है. मतलब दैट इज द मॉडरेट लेवल बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर. सो सिलिकॉन एंड जर्मेनियम एंड कार्बन. सिलिकॉन एंड जर्मेनियम इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द semiconductor. You can also learn in the semiconductor chapter, and that is the most important topic. Okay. Now the next topic is the properties of the electric charge. So there are most important properties are there. First is that additively electric charge. It means, what is the first property? Electric charge is a scalar quantity, so that electric charge of the system is obtained simply by adding the different charge algebraically with a sign according to their. It means कि इसके अंदर जो टोटल चार्ज होगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने मटेरियल लिखे उसके अंदर जो टोटल चार्ज होगा क्या होगा, सबके एडिशन के बराबर होगा. जैसे कि Q1 आपका मान लो 5 है, Q2 आपका 6, Q2 आपका 3 है, बराबर है. Q1 आपका 5 है, Q2 आपका 3 है, तो 5 और 3 कितना हो गया 8. Q4 आपका मान लो -2 है, तो कितना हो गया, तो 8 - 2 यानी -6. और ये जो Qn है वो भी आपका +2 है, तो क्या हो जाएगा 10, बराबर. तो टोटल आप कर सकते हो एल्जेब्रिक, मतलब प्लस होगा तो प्लस भी नहीं. जैसे कि पहला मैंने बोला 5 है, दूसरा आपका 3 है, तो 5 और 3 8. फिर ये जो Q3 है वो आपका क्या है -2 है, तो क्या हो जाएगा मतलब +6, बराबर. 8 - 2 यानी 6. और यदि ये आपका प्लस है तो क्या हो जाएगा +1 यानी 7. तो मतलब सबको आपका एल्जेब्रिक एडिशन करना है विथ साइन, तो वो आपका टोटल चार्ज हो जाएगा. द चार्ज इज कंजर्व्ड. It means according to energy conservation law. What is energy conservation law? Energy neither created or is not destroyed. It just convert only one form to another. So similarly here, charge either created nor destroyed. It just only transfer from one body to another body. Okay, but total charge of an isolated system should be 0. For example, here the glass rod, glass plus silk, glass having 0 charge because proton neutron equal amount, silk is also in equal amount, so that is 0. But when you are rubbing silk cloth on a glass, then what happen? Glass can remove the electron to the silk cloth, and silk are absorb some amount of the electron from the glass. So due to that ग्लास इज लॉसिंग देयर इलेक्ट्रॉन, वो अपने इलेक्ट्रॉन खो देता है, इसलिए वो कैसा बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज.
और ये जो सिल्क क्लोथ है वो क्या करेगा, उतने ही अमाउंट में इलेक्ट्रॉन अपने आप को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इट मीन्स यहाँ पे यदि 5 जितने इलेक्ट्रॉन, फॉर एग्जाम्पल मेरा ग्लास है, बराबर है, उसके अंदर 10 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन है, समझना ध्यान से कि 10 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन है। और दूसरा जो मेरा सिल्क का क्लोथ है उसमें भी 5 इलेक्ट्रॉन और 5 प्रोटॉन है, समझना ध्यान। तो अगर मैं इस सिल्क क्लोथ को इसके ऊपर घिसता हूं तो क्या करते हैं, ग्लास में से कुछ इलेक्ट्रॉन, मान लो 3 इलेक्ट्रॉन ग्लास में से निकल के सिल्क में चले गए। देखो दोनों में प्रोटॉन मूव नहीं करे, मतलब प्रोटॉन के एडिशन तो सेम ही रहेगा। तो यहाँ पे जो ग्लास था उसने 3 इलेक्ट्रॉन खो दिए। क्या कर दिए उसने, 3 इलेक्ट्रॉन खो दिए। तो अब यहाँ पे टोटल क्या हो जाएगा, 3 जितने कम हो जाएंगे, और यहाँ पे उसने 3 जितने इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा मान लिए। तो +3 और -3 वापस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इट मीन्स अगर कोई एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर यदि आप रगड़ते हो तो ऑब्जेक्ट का चार्ज चेंज हो सकता है, लेकिन उस सिस्टम का चार्ज कभी चेंज नहीं होगा, वो ऑलवेज 0 ही रहेगा, या तो जो कांस्टेंट था वही रहेगा। थर्ड, that is the quantization charge rule. Actually, this rule is given by the Michael Faraday. The electric charge on a body is always integral multiple of E. Means जितने भी चार्ज ऑल ओवर द वर्ल्ड, जितने भी चार्ज आप ले लो, बराबर, वो सारे E के इंटीग्रल बने, 1E, 2E, 3E, 4E। कभी ऐसा नहीं होगा भाई 2.5E, that is impossible। 5.6E means integral multiple of electron, that is the rule is quantization. But this is not true right now because of some discovery of the quarks. Okay, number of quarks are available. Because here we can see the electron and proton are also made up from the small quarks. Due to that 3 quarks, up quarks, down quarks, and number of quarks. There are 6 type of quarks. Okay, up quarks, down quarks, charm, strength, top, bottom. There are number of quarks are there, and due to that discovery we can say that the quarks is the basic. Here electron and proton are made from the smaller particle of the quarks, but we are not going to till to the deep into class 12. Okay, so according to Michael Faraday, okay, each and every charge into the universe, okay, or into the world are integral multiple of n. When what is the E? The charge of the electron, that is 1.6 10 to minus 19 coulomb, and n is equal to 1 2 3 4 5 6 number of. The unit of the electric charge is coulomb into the memory of the coulomb, because coulomb is the discovery of the charge. Now the total charge on the 6.24 10 to 18 electron equal to 1 coulomb. So how you can calculate that is, here you know that what is Q? Q is equal to N into A. So you know how many electrons in a 1 coulomb charge. So you know what is the value of the Q. So Q is equal to 1. You know also what is the value of E. Okay, 1.6. So you can also find out what is N. So N is equal to Q by A. You putting the value of Q, putting the value of E, you get this amount. Okay, इसका कैलकुलेशन मैं बता दूंगा. Now charging by induction. So first of all, charging means a body getting charge. Okay, a chargeless body getting charge, that is called charging. So there are first method, 2 kinds of method. The first method is that using the ground connection. So here we can see in the figure 4 kind of balls, that is the metallic balls A, B, C, D. So a positive charge of the rod, positive charge rod, okay, means a rod having positive charge is just brought to the neutral metal surface, then it is polarized. Means क्या होगा कि ये जो पहला मेटल बॉडी है उसके पास यदि मैं ये ग्लास का रॉड ले जाऊंगा तो एक्चुअली क्या होगा, जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, रॉड की ओर अट्रैक्ट हो जाएंगे, और रॉड की ओर अट्रैक्ट होंगे तो दूसरी ओर इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, तो दूसरा जो सिरा है वो पॉजिटिवली चार्ज बनेगा. याद रखना, प्रोटॉन मूव नहीं कर रहा है,
इलेक्ट्रॉन मूव करे, लेकिन इलेक्ट्रॉन खिसक गए तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जगह खाली हो गई। तो इलेक्ट्रॉन की जगह खाली हो गई, इट मीन्स वहां पे अब क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज। अब दूसरे फिगर में हम देख पा रहे हैं ओके कि द स्फीयर इज ग्राउंडेड विद अलोइंग द इलेक्ट्रॉन्स एंड अट्रैक्टेड टू द अर्थ, मतलब उसको हम क्या कर रहे हैं, अर्थ के साथ कनेक्शन करके ग्राउंड कर रहे हैं। तो ऐसा करने से क्या होगा कि जो प्रोटॉन होंगे, द ग्राउंड कनेक्शन इज, अब क्या करेंगे, ऐसा होने से क्या होगा कि जो भी पॉजिटिव चार्ज होगा वो सारा क्या हो जाएगा, ग्राउंड के साथ कनेक्ट होके न्यूट्रल हो जाएगा। मीन्स द ग्राउंड कनेक्शन इज ब्रोकन। अब मैं सी में देख पा रहा हूं कि मैंने ग्राउंड का कनेक्शन निकाल दिया, तो अब उसके अंदर सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही बचे हुए हैं और रॉड के पास। अब जब मैं रॉड को दूर कर दूंगा ओके, फोर्थ में डी में कि यदि मैं रॉड को दूर कर देता हूं तो रॉड को दूर करने से ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चारों ओर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। चलो अब देखते हैं मेथड 2। मेथड 2 में क्या है कि 2 अनचार्ज मेटालिक स्फीयर, 2 अनचार्ज है, बराबर है, दोनों को एक दूसरे में कांटेक्ट में लाए, इंसुलेटेड किया ओके, रेस्ट में रखा, लेकिन उनके बीच कोई चार्ज का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है बिकॉज बोथ आर न्यूट्रल। अब सेकंड में क्या करते हैं कि एक पॉजिटिव चार्ज वाला जो है, जो पॉजिटिव चार्ज रॉड को मैं एक स्फीयर के पास ले जाता हूं, तो ऐसा करने से क्या होगा, तो उसके पास उसी तरह नेगेटिव आएंगे और दूसरे वाले सिरे के पास पॉजिटिव हो जाएंगे। फिर तीसरे में मैं क्या करता हूं, दोनों को थोड़ा अलग कर देता हूं, दोनों मेटालिक बॉल्स को थोड़ा एक दूसरे से सेपरेट कर देता हूं ओके। नाउ द स्फीयर ऑफ द सेपरेटेड बाय द रॉड रिमूविंग एंड रिपार्टिंग द पॉजिटिव एंड नेगेटिव ओके। अब ये जो रॉड है, चौथे में मैं देख सकता हूं कि चौथे में मैं क्या करूंगा, रॉड को भी अलग कर दूंगा। तो रॉड को अलग करने पे हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो पहला वाला जो मेटालिक बॉल है वो नेगेटिवली चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया और उसमें पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। तो इस तरह से हम कोई भी ऑब्जेक्ट को चार्ज कर सकते हैं। सो थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।